साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। अरे ढोल वाले आ गए। वाह वाह भाई, अगर आप लोग आ गए तो फिर देर किस बात की है, शुरू हो जाएं। शाबाश, प्लीज शुरू करें। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? दाऊद जी। दाऊद, वाह वाह, क्या तुमने ढोल बजाया, वेल डन। और वो क्या नाम है तुम्हारा अपना? जानू जी। जानू, शाला कोट का जानू छा गया। जबरदस्त, आओ मेरे साथ, आओ। तुम तो पीछे हटो यार, आओ आओ मेरे ऑफिस में आओ। तुमने तो आज कमाल कर दिया यार, क्या कमाल का ढोल बजाया। छा जाओगे तुम लोग। कमाल हो गया, छा जाओगे। आ जाओगे। प्लीज चेहरा थोड़ा सा मेरी जानिब, जरा सा इधर। देखिए आप रो क्यों रही हैं? कमाल है। पकड़े। आई एम सॉरी सलमान साहब, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, ये मेरे बस का काम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कुछ कहा है आपसे? आई एम सॉरी। आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सलमान साहब, आपको तो इल्म होगा कि इंसान कब रोता है। सच, मैंने कभी सोचा नहीं। आंसू तो उसी की आंख में आते हैं सलमान साहब जो मजबूर होता है, ताकतवर तो कभी नहीं रोता। लेकिन मैं आपको, मेरा मतलब है कम से कम इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी ताकत बना दूंगा। नहीं सलमान साहब, ताकत तो अंदर की क्वालिटी है, इसका मुजाहरा बाहर हो सकता है, लेकिन असली ताकतवर कभी नहीं रोता। बुज़दिल की आंख नमनाक रहती है, मजबूर आदमी भागने से पहले खौफज़दा होता है, एहसास कमतरी की चादर ओढ़ने से पहले डाकू अंदर सुकड़ता है। शिकस्त से पहले आपका नेपोलियन भी रोया होगा, हुमायूं की आंखों से भी आंसू गिरे होंगे। बस मुझे माफ कीजिए, मैं आपका मॉडल नहीं बन सकती, मैं अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई।
یہ فیصلہ آپ کیوں بدل رہی ہیں؟ میں اس تصویر کی نمائش شالا کوٹ میں تو نہیں کروں گا. میں ایک بار تب بھی روئی تھی جب ابا لاہور گیا تھا ہارس اینڈ کیٹل شو پر اور واپس نہیں لوٹا تھا. ہارس اینڈ کیٹل شو؟ یہاں روز ایک نئی بات سننے میں آتی ہے. ابا بہت بڑا نیزے باز تھا. ایک ہی ہلے میں قلعہ اٹھا لیتا تھا ہمیشہ. اور جب وہ لاہور گیا نا ہارس اینڈ کیٹل شو پر تو میں نے ابا سے کہا لاہور سے میرے لیے ایک موتیوں والا پراندہ لے کر آئے. مجھے خوبصورت پراندے کا بہت شوق تھا. تو آپ کے والد پراندہ لائے؟ پراندہ تو انہوں نے منشی عارف کے ہاتھ بھجوا دیا تھا لیکن ابا چودھری عبدالغفار نہیں آیا. وہ موتیوں والا پراندہ ابھی بھی میرے پاس ہے. تب آپ کتنی بڑی تھی؟ تب میں بہت روئی تھی. ویسے آنسو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں گرائے. مجبوری کے، بزدلی کے، خوف کے آنسو. نازو میں آپ کے دکھ کو جانتا ہوں. نہ سلمان، کوئی کسی کے دکھ کو نہیں جان سکتا. دکھ تو ایک موم بتی ہے، قطرہ قطرہ جلتی ہے ایک ایسے طاق پر جس کے سامنے شیشہ ہے. شیشے پر آنسوں کی جھلار اترتی ہے. موم بتی نظر نہیں آتی کسی کو. تم تو شاعر ہو نازو. دوسری بار میں اس وقت روئی جب شاداب بھیا ریاض جانے لگا. میں شاداب ملک سپلائی چلانا نہیں چاہتی تھی. زمینوں پر ٹریکٹر چلانے کے لائق نہیں تھی سلمان. لیکن شاداب کا مستقبل ڈاکٹری تھا. اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں. اس وقت میں ایک خواب کی حراست میں تھی، کالے گھوڑے کے تعاقب میں. شاداب بھیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا. پتہ ہے سلمان، خواب انسان کی زندگی کا حصہ کب بنتے ہیں؟ میں نے کبھی سوچا نہیں نازو. آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں سلمان صاحب. مغل بادشاہوں کے خوابوں سے بھی واقف ہیں. جب حقیقت اتنی دور ہو کے ہاتھ نہ پہنچ سکے، خوف اور بزدلی قدم نہ جمنے دے تو آدمی خوابوں میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور مجبور آدمی کے لیے حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے. اس کے لیے قوس قزح کو چھونا
صرف خواب میں ہی ممکن ہوتا ہے. آپ پھر رو رہی ہیں؟ جو بول نہ سکے، اظہار نہ کر سکے، وہ روئے نہ تو اور کیا کرے. مجبور آدمی کا ایک ہی تو ہتھیار ہے سلمان، آنسو. ہتھیار بھی اور ڈھال بھی. اور جو رو بھی نہ سکے اور بول بھی نہ سکے نازو، وہ کیا کرے؟ اچھا تم ایسا کرو کہ مرغے لے کے میرے دفتر میں پہنچاؤ. بلکہ نہیں، مرغے رہنا دو. 3 بجے تم دونوں نے میرے دفتر پہنچنا. اور اگر مجھے کچھ دیر ہو جائے تو وہ کدھر ہے؟ افتخار، یہ میرا پی ہے، اس سے ملنا ہے. ٹھیک ہے؟ جی مائی باپ، ہم ابھی پہنچ جاتے ہیں. اور نہیں 3 بجے. ابھی میں نے ایئرپورٹ جانا ہے یار. سرکار، پچھلی جمعرات ہم آئے تھے، آپ کے چوکیدار نے ہمیں اندر نہیں آنے دیا، اس کو بتا دیجیے. نہیں یار نہیں، اس بار نہیں ہوگا. تو ٹھیک 3 بجے پہنچ جانا. ٹھیک ہے؟ ماسٹر مستقیم، جب تک سلمار کی بیماری کا دھکا نہیں لگا تھا میں جوان تھا، اور خبر ملتے ہی ایک دھماکہ ہوا، میں چاغی کا پہاڑ بن گیا. بڈھا پھوس، زرد رنگ کا بابا موسا. اور ماسٹر جی، آپ بوڑھے نہیں ہیں، آپ جوان ہیں، جوان. آ جائیں. میں بتاؤں مرد کب بوڑھا ہوتا ہے؟ بتاؤں مستقیم؟ جی جی بتائیے. جب مرد پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے رقت طاری ہو جائے تو مرد بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. کسی فلم کا دردناک سین دیکھے اور رو پڑے، نعت کے شعر سن کر بلبلائے، عورتوں کے دکھ درد سنے اور آنکھوں پر رومال رکھنا پڑے، قائد اعظم کی تقریر سن کر درد سے بھر جائے، اولاد کی مشکلات کا مقابلہ نہ کر سکے اور آنسو جاری ہو جائے. یاد رکھو مستقیم، مرد جب لا طاقتہ ہو کر مجبور ہو جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے تو بوڑھا ہو جاتا ہے. اب ماسٹر جی چھوڑیں، ابھی آپ کسی کو مکہ مار دیں تو اسے پولیس بلانی پڑے. ارے غلط فہمی ہے تیری مستقیم. ماسٹر موسیٰ میں اب کچھ نہیں رہا، اولاد کا فتنہ پیدا ہو گیا ہے میرے دل میں. مستقیم، سلمان کے لیے میں ہر لمحے خوفزدہ رہتا ہوں، ہر گھڑی ڈر گھیرتا ہے مجھے. سلمان کی بیماری نے توکل رخصت کر دیا ہے میرے دل سے. اچھا کیا تو نے شادی نہیں کی. اولاد اور مال فتنہ ہے، اولاد سب ایمان، توکل، پرہیزگاری ختم کر دیتی ہے.
वो कहने को कुछ नहीं, लेकिन जी चाहता है नाजो कि तुम्हें खत लिखूं, ऐसा खत जिसमें तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बड़ी दुआएं हों। लेकिन फिर दिल ये खत रकम नहीं करने देता, कहता है एक निकाह ही तो हो रहा है। निकाह क्या चीज है सलमान, रुखसती तो नहीं हो रही। कुछ भी हो सकता है नाजो, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें कैसे दुआ दूं जब ये दुआ मेरे लिए बद्दुआ बन सकती है। मास्टर जी, अब तो सलमान के कपड़े भी आप ही को धोने पड़ते हैं। भाई बेटा है मेरा, माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ। मास्टर जी। ये तो वालेकुम सलाम। आओ भाई जबील, कैसे आए? जी मैं कपड़े धो दूं? नहीं नहीं, तुम आए कैसे हो? जी आपसे एक प्राइवेट बात करनी थी, आप थोड़ी देर के लिए जरा इधर आ जाएंगे? प्राइवेट बात? मास्टर जी वो ठीक है ठीक है, सुबह इंशाल्लाह स्कूल में मुलाकात हो। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या बात है? जी मेरे दिल में बड़ी खुलबुली मची हुई है, कहीं कोई शाला कोट का मासूम आदमी ना फंस जाए। क्या मतलब तेरा? जी आपने परसों कहा था ना क्लास में कि सच्ची गवाही को छुपाना नहीं चाहिए। ओ जबील सीधी बात कर, ओ क्या गोलमोल लगा रखी है? जो आग लगी थी ना कमान में चौधरी जब्बार के खेत में। तुझे कैसे पता लगा आग लगी थी? अरे वो तो बाबे खैर ने चिलम जलाने के लिए आग लगाई थी। नहीं मास्टर जी, चौधरी सरफराज ने कमात को आग लगाई थी, आप पे खुद। मैं वट पर आ रहा था जी, चौधरी सरफराज को देख के मैं कमाद में छुप गया। जी मास्टर जी, जब आग तेज हुई ना तो चौधरी सरफराज फिर आ गया। जी मैं खेत में था, उसने अपना नेजा उठाया और आग को बुझाने लगा। मास्टर जी ये क्या बात हुई, खुद ही आग लगाई और खुद ही बुझाने लगा। देख, तूने किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना। और जो कोई और फंस गया, हमारा बनना मिलता है चौधरी की कमात से। जो मेरा अब्बा फंस गया, जो मेरा चाचा फंस गया। ओ बल्लिया, हम सब ने कभी ना कभी तो फंसना ही है। वो दुआ कर बुढ़े वाले ना फंसिए। अच्छा जी। बीबी को ना बताना। खैर से तुझे पता ही नहीं आग किसने लगाई थी, किसने बुझाई थी। वो जी ओए किसी पुआड़े में ना फंसना, खास तौर से किसी बड़े आदमी के काम में तो बिल्कुल नहीं। छोटे आदमी का क्या काम है गवाही देना। शुदाई ना हुए थे, तुझे कुछ पता नहीं किसने आग लगाई, तुझे बिल्कुल खबर नहीं किसने आग बुझाई। हम दोनों कौन है? एवे जी, आप तो मास्टर जी है। चल मैं तो मास्टर हुआ, तू कौन है? एवे जी, कमी कमीन। काका जबील। जी मास्टर जी। बस चुप, बेबी को ना बताना, चाचा से जिक्र नहीं करना। एक चुप 100 सुख। चल चल शाबाश, चल बस मास्टर जी। वालेकुम सलाम।
बेबे ये क्या हर वक्त तू पाजेबे देखती रहती? पुत्र, जब मैं डोले से उतरी थी ना, तो उतरने से पहले तेरी दादी ने ये पाजेबे मेरे पाँव में पहनाई थी। फांसे के सोने की है। फिर उसी दादी ने, तेरी सास ने कोशिश की होगी कि तेरे कदम हवेली में ना टिके और तू शाला कोर्ट से बेइज्जत होकर निकली। खबरदार खबरदार, बहिश्तन के खिलाफ एक बात ना करना। बेचारी ने बहुत दुख झेले हैं मेरे हाथों। कमाल है बेबे, जब तक दादी जीती रही तू मजलूम थी, जब वो मर गई तूने उसे मजलूम बना दिया और खुद जालिम बन गई। क्या चक्कर है बेबे, ऐसा क्यों है? पता नहीं क्या भेद है, पर सच्ची बात है, हर आदमी का एक ओला है। उस असल बंदे तक पहुंचने के लिए या मोहब्बत काम आती है या फिर रोजे क़यामत तक इंतज़ारी। बेबे, तूने कभी सोचा है कि हम सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते? एक ही आदमी से मोहब्बत होती है, उसी से नफरत। कभी जी चाहता है कि आदमी अपने हाथों से उसे मार दे, और कभी ये जी चाहता है कि खुद आदमी मर जाए उसकी खातिर। ना सोचा कर इतना, ना सोचा कर। सर देख, ये देख, ये देख, ये देख, कितनी खुशकी होगी ये तेरे सर में। अभी तेल की मालिश करती है। कितनी आसानी से फैसले कर लेती है बेबे तू। नींद नहीं आ रही, दूध में शहद डाल के पी लो। सारा बदन शोलों से भटकता है तो पाँव में कद्दू जसवा लो। झांकते में बुरे ख्याल आते हैं तो बाबा कतवानी से पानी दम करवा लो। कितनी मौज है बेबे तेरी। ना तेरे दिमाग की कोई तार फ्यूज है, ना तुझे वसवसे डराते। खुश नसीब है बेबे तू। मैं तो आजकल हवा से भी डर जाता हूँ बेबे। ओ बेबे, एक सेकंड, तेल मत लगा, ये चिपचिप करता है। चुपचाप बैठ जा आराम से, बाद में नहा ले। उधर नाजो को देख, 40 घड़ियों पानी से नहाती है और तेरे से सर में तेल नहीं चसवाया जाता। उसे इज्जत का ख्याल है, तू एवं। बेबे, एक बात पूछूं? पूछ, बिस्मिल्लाह पूछ। चाची मरियम ने रुश्ती से इनकार क्यों किया है? पुत्तरे, शादाब को छुट्टी नहीं मिली। उसका साथी डॉक्टर लाहौर आ रहा था शादी कराने, तो एक वक्त में 2 डॉक्टरों को छुट्टी तो नहीं मिलती ना। बेबे, ये बात तो मुझे 100 बार बता चुकी। कहीं शादाब बहाना तो नहीं बना रहा बेबे? बहाना? मैं सोचता हूँ कहीं और बात ना हो। नाजो ना चाहती हो कि अभी रुकती हो। क्यों? जिसका अपना कारोबार हो बेबे, मिल्क सप्लाई का अपना हिसाब किताब हो, उसे क्या जरूरत पड़ी है शादी का फंदा गले में डाले? उसे क्या जरूरत है चौधरी सरफराज की बेबे? वही हर वक्त ना सोचा कर, ना सोचा कर, ज्यादा बातें ना किया कर। सुबह सवेरे उठ के अखाड़े जाया कर, नेजाबाजी सीखा कर। रज खाने की मस्तियां, हमें विंगे सीधे होके मंजा तोड़ना, सारी सारी रात बैठ के फिल्में देखनी VCR पर। खुशकी तो होनी हुई सर पे, देख जरा कितनी झड़ रही है खुशकी। और कल से ना तेरे सर में मैं देसी घी की मालिश करूंगी। ठहर जा। क्या मजे हैं बेबे, हर बात का सीधा इलाज है तेरे पास। दादी ठीक कहती थी बेबे, तू गां है गां, देसी घी जसूंगी सब ठीक हो जाएगा।
मेहमान खसूसी खुशी मोहम्मद लासानी साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, मैं आज ये ऐलान करने में बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ कि आलमी मेले पर हमारे आर्टिस्टों का वफद कुछ रोज़ के बाद अमेरिका रवाना हो जाएगा। ये मेला तकरीबन 1 माह के लिए अमेरिका में मुनक़िद होगा और इस मेले में 32 ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जिनमें हमारे आर्टिस्ट दुनिया को दिखा देंगे कि आर्ट और कल्चर की नुमाइंदगी में हमारे आर्टिस्ट दुनिया के किसी फनकार से कम नहीं हैं। इस वक्त आपको इन आर्टिस्टों से मुतारिफ करवाना चाहता हूं, जान मोहम्मद ढोलिया और दाऊद, जिनका ताल्लुक शाला कोट से है। अब मैं मेहमान खुसूसी जनाब खुशी मोहम्मद लासानी साहब से इस्तदा करूंगा कि वो इन मायानाज ढोल नवाजों को फूल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम मुंशी जी। वालेकुम सलाम। बीबी तो इधर नहीं आएगी अब। क्यों जी? आपको नहीं पता नाजो बीबी का निकाह है। महीने 2 बाद अगर डॉक्टर शादाब सऊदी से आ गया तो रुखसती भी हो जानी है, पर अभी कुछ गपला है। वो ये किताबें फन तामीर पर हैं, आप उन्हें पहुंचा देंगे? बिल्कुल जी। शुक्रिया। साथ साथ आप लोग इतने बेखबरे क्यों होते हैं? क्या मतलब? सारे गांव को पता है निकाह का, आप किताबें ठोक रहे हैं। अब बीबी को किताबों का वेल कब मिलना है? कड़ी कड़ी तो रस्में शुरू हो रही हैं। हाँ, ये भी आप ठीक कहते हैं। लाइए मुझे दे दीजिए। शाबाश शाबाश, मोड़ ही ले जी। अब रस्में शुरू हो चुकी हैं। किताबों का क्या काम, हमारी रस्में तो बड़ी बड़ी देर तक चलती हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारा वकार, नाम और शनाख्त
हमारे मशाहिर की वजह से है। कोई कौम उसी कदर सरबुलंद होती है जिस कदर उसके आर्टिस्ट, फनकार, मुसव्विर और मौसीकार बुलंद हो। हर कौम का शनाख्ती कार्ड यही लोग हैं, और इस मामले में हम दुनिया के किसी मुल्क से पीछे नहीं। हमारे शोरा फाक आर्टिस्ट जब कभी बाहर गए हैं अपना लोहा मनवा कर आए हैं। मेरी दुआ है कि इनको आलमी मेले में फतहयाब होकर लौटना नसीब हो। हमारे आर्टिस्ट जिंदाबाद। खुदा हाफिज। ये थे हमारे मेहमान खुसूसी, और आप सबके लिए ऐलान ये है कि रिफ़्रेशमेंट आप सबकी मुंतज़िर है। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार ये क्या है? ये आर्टिस्ट वगैरह के लिए बाद में रिफ्रेशमेंट सर्व होगी, इनको रोको। लेकिन सर कुछ लोग तो जा भी चुके हैं। ओहो यार, ये वीआईपीज के लिए है, रिफ्रेफ्स के लिए नहीं है। इनको रोको यहाँ से, इस वक्त इनके लिए नहीं है ये। लेकिन सर, और सर्वर मैं कुछ नहीं जानता, इनको रोको। और खासतौर पर ये जो ढोल वाले और ये गाने बजाने वाले हैं ना, इनको रोको किसी तरह। बस मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानता मैं। उधर सिंगरों ने, पहलवानों ने और कुक्कड़ लड़ाने वालों ने तो अन्नी डाली हुई है यार। बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। चल मेरा भरा, आजा फटाफट शुरू हो जा। पकड़। नहीं यार, मेहरबानी। ओ यार क्यों भाई? बस यार भूख नहीं। यार कमाल कर रहा है जाने यार, तू कमाल ही करी जा रहे है। वो देख तो सही अल्लाह में कितना नवाज रहा है यार। वहां जाकर भी हमारे साथ ऐसा ही होगा दाऊद भाई। न्यूयॉर्क में रोज़े के अब इंसाफ के दिन